Good morning, good evening, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, Aviral and Soumya. Good afternoon, sir. चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चे ही नहीं आ Yes, रहे हैं sir. आज, क्या बात है? ऑनलाइन क्लास में सब ऑफलाइन जा रहे हैं क्या? अच्छा, सुबह तो बच्चे No, थे sir. ज्यादा। अच्छा, नहीं जा रहे हैं, फिर No भी नहीं sir, आ रहे हैं पहले ऑनलाइन। थे। हाँ, मॉर्निंग क्लास में तो फिर भी ज्यादा थे, अब कम हो गए। थोड़ा केयरलेस हैं बच्चे, आई थिंक। वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अब नहीं आएगा समझ में तो क्या करेंगे? तो एक बच्चा तो कोई आया, ऋषभ जैन आ गए। Rishabh, you're joining very late. So actually there was no charging in my device, so I have to charge it for Oh. 5 to 10 minutes. Okay, because of consecutive classes. Back-to-back classes, huh? Okay, so we have done one of the chapters which will be coming in the second term. Yes, sir. Okay, the next chapter that we are going to start is, let's start properties of triangle. What do you think? Okay, sir. Let's start properties of triangles. Okay. And there is linear equation also is left. Linear equations is left. Profit and loss is left. Congruence is left. What should we start? I think we should start linear equations. Okay, let's start linear equations only. Page number 107. All of you open it. Open page number 107. Sir, opened. Open. Let me also open it. I have also opened. So what is a linear equation? What is an equation first of all? इक्वेशन जानते हैं? कहीं पर भी दो एक्सप्रेशंस अगर लिखे होते हैं, एक्सप्रेशंस जानते हैं? अब यहाँ पर एक वर्ड आता है एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर आपने पढ़ा था? Yes, sir. 2x + 5, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पढ़ा है सबने? Yes, sir. Similarly, I am also writing an expression here. एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं। सपोज 5x minus let's write 17. No, let's write minus 19. 5x minus 19, this is another expression. ये दो algebraic expression है, मैंने लिखे। अब दो algebraic expressions और बीच में एक equal to आ जाए तो ये पूरा क्या बन जाता है? This becomes an equation. What is this? This is an equation. अगर कहीं पर भी कहीं दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू लग जाता है, इक्वल टू साइन आ गया, इसका मतलब वो इक्वेशन है। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज एन इक्वेशन? अब इक्वेशन भी अलग अलग टाइप की होती है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर वर्ड कहाँ से आता है? लीनियर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है दैट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 1। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें हाउ मेनी वेरिएबल्स आ गए? Sir, 2. देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज x। 2 नहीं है, x को 2 बार लिखा गया है, लेकिन हम क्या कहेंगे? देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज x। y तो नहीं है यहाँ पे। अगर x एंड y होता, एक होता x, एक जगह होता y,
या दो जगह x होता एक जगह y होता, तब हम कहते देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, but it is having only one variable. Okay, and what is the power of x? Highest power of x, what is the power of x here? 1. अगर कोई पावर नहीं लगी यानी कि पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर भी कोई पावर नहीं लगी है, that means the power is 1. So the highest power is 1 only. What is the highest power of variable in this equation? Highest power is 1 1. of the variable. So we can say that this is a linear equation. If the highest power is 1, then we can say the given equation is linear. मैं एक और लिखता हूँ, you will tell me whether this is a linear equation or not. 5x minus 15 equals to 2 plus 7x square. Is this a linear equation or not? No, sir. No. Why? No, sir. The Because power is 2. the highest power is 2. उसको बोलते हैं highest power, जरा थोड़ा बड़ा वर्ड है बोलने में, highest power of the variable बोलने में थोड़ा बड़ा होता है ना, शॉर्ट में बोलते हैं डिग्री इज 2. क्या है डिग्री इसकी? व्हाट इज द डिग्री? 2. ठीक है? So therefore this is not a linear equation. इस टाइप की इक्वेशन जहाँ पे डिग्री 2 होती है उसको बुलाते हैं quadratic equation. What do we call it? We call it as, what do we call it? We call it as quadratic equation. ठीक है? Okay, sir. Now let us learn how to deal with linear equations. क्या होती हैं linear equations? ये तो समझ लिया क्या होती है. Now a linear equation में एक चीज होती है, there is something known as solution of the linear equation. Solution of the linear equation यानी कि जैसे कि मैं सिंपल सी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, वेरी इजी. और I will try to explain what is the meaning of solution of a linear equation. 5x minus 3 equals to let's take 7. Okay, so 5x minus 3 equals to 7. This is an equation. First of all, is this an equation or not? क्या ये एक Yes, sir. equation है? Yes. क्या ये एक linear equation है? Yes, sir. Yes, it is a linear equation because the degree of the equation is 1. Now what is the solution of a linear equation? Solution का मतलब होता है that value of x at which the LHS of the equation, LHS of equation मतलब left hand side, this is known as LHS. इक्वल टू के दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है. इक्वल टू के लेफ्ट में कुछ लिखा होता है, इक्वल टू के राइट में कुछ लिखा होता है. दिस इज नोन एज आरएचएस. राइट साइड में जो भी लिखा होगा दैट विल बी नोन एज, शॉर्ट में बोलते हैं आरएचएस. आई बात समझ में? एलएचएस आरएचएस. सो दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल at which the LHS value of the LHS becomes equal to the value of the RHS, उसको बोलते हैं solution of the equation. Let's try with x equal to 1. मान लीजिए हम x equal to 1 ले लेते हैं. अब LHS को सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे करेंगे? 5 into x की जगह 1 पुट कर दिया. देखो क्या लगाया x की जगह. करना नहीं है आपको, कॉपी में कुछ नोट नहीं करना है, बस खाली प्रवचन की तरह सुनते जाना है और समझते जाना है. सो लेट्स पुट x इक्वल टू 1 लगा दिया. तो 5 into 1 minus 3 क्या मिला आपको? 5 into 1 होता है 5. 5 minus 3 क्या मिला? 2. LHS की वैल्यू आ रही है 2. RHS में क्या लिखा है भाई? RHS में 7. लिखा है 7. क्या LHS RHS हमारे इक्वल मिल रहे हैं? x इक्वल टू 1 No, लगा, sir. नहीं मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम हो गई. We are not getting LHS equal to RHS. LHS is not equal to RHS. Therefore, x equal to 1 is not a solution of the equation. Now, solution of equation, आइए एक और वैल्यू ट्राई करते हैं. Let's try with x equal to 2. आइए ट्राई करके देखते हैं. LHS
LHS 5 into 2 minus 3. What is 5 into 2? 10. 10 minus 3? 7. 7. RHS कितना है? 7. 7 है। क्या LHS RHS इक्वल मिल गए? Yes, sir. Can we say that x equal to 2 is the solution of the equation? Yes, sir. Yes. आप बोलेंगे अरे वाह मजा आ गया, x equal to 2 is the solution of the equation. समझ में आया solution of equation का मतलब क्या होता है? Yes, sir. लेकिन हर बार हमें ये जो तरीका है, ये तो तुक्का मारने वाला तरीका हुआ। तुक्का मारेंगे क्या हम? तुक्का मार रहे हैं, नहीं मार रहे No, हैं, sir. वैल्यू लगा लगा के देख रहे हैं, वैल्यू लगा लगा के देख रहे हैं, एम आई राइट और नॉट? यहाँ तो तुक्का मार रहे हैं फिलहाल अभी तक तो, एम आई राइट? Yes, sir. है ना, गैस गैस कर रहे हैं कि क्या हो सकती है वैल्यू। गैस मतलब हिंदी में बोले तो तुक्का। सो वी आर गेसिंग वेदर दिस इज द सॉल्यूशन और नॉट। लेकिन ऐसे काम चलेगा क्या गैस करने से? गैस करने से No, काम नहीं sir. चल पाएगा। अब क्या करेंगे जब गैस करने से काम नहीं चलेगा? देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक ही बात होती है। तो यही करना है हमको एक्सरसाइज 7A में। Let us start. I will tell you a proper method of how to solve linear equation. Solve का मतलब solution निकालना, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करना, वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, क्या होता है सॉल्यूशन, अब कैसे फाइंड करते हैं, बस वो नहीं बताया हमने। इतना समझ में आ गया? व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? दिस इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. वेरी नाइस। धीरे धीरे एक दो बच्चे आ रहे हैं, बट अच्छी बात नहीं है, ये बहुत लेट आ रहे हैं। सात्विक बेटा कहाँ गए थे? यस सात्विक, कहाँ थे बेटा, बहुत लेट हो गए। Sir, I was just having a fever. That's why. ओह, ज्यादा तेज तो नहीं है? No, it's fine now. ओके, टेक केयर। It is not compulsory if you are not feeling that well. It is not compulsory to attend the class. You can take some rest. Otherwise, if you feel comfortable, then you can definitely attend the class. Okay, so yeah, let's learn how to solve a linear equation. We have till now we have already understood that what is the meaning of linear equation, what is the meaning of solution of a linear equation. Now we are going to learn how to solve a linear equation. Actually, how to solve a linear equation. That means how to find the value of the variable which will satisfy the equation. So 3x minus 5 equals to 0. कैसे solve करते हैं? First of all, आप कोशिश करेंगे यहाँ पर कि x को हम LHS या RHS में विदाउट एनी कांस्टेंट अकेला छोड़ दें। हमारा मोटिव क्या होता है सॉल्व करने के लिए? आवर मोटिव इज दैट एक्स को बेचारे को या तो एलएचएस में या आरएचएस में अकेला छोड़ना है, उसके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू मिलती है। उसको बेचारे को अकेला करना है। कैसे अकेला करते हैं? देखो ऐसे करते हैं। 3x इक्वल टू आरएचएस में 0 था, ये -5 कूद के आरएचएस में चला जाएगा। अब इसने अपनी टीम चेंज कर ली तो ये आरएचएस में जाके +5 बन जाएगा। ओके, Okay, sir. तो 3x इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको? 0 + 5 कितना होता है? 5। 5. अब ये x यहाँ पर x के साथ अभी एक और चीज बची है, वो दैट इज 3। मल्टीप्लाई में 3 लगा है, 3 मल्टीप्लाई में जब 3 यहाँ से वहां जाएगा आरएचएस में पूछ जाएगा तो ये उल्टा डिवाइड में जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। मिल गई x की वैल्यू 5/3। इजी था या नहीं था बताओ? Yes, sir. Similarly, let's start with question number 2. You all can note down the question. Done? Yes, sir. Okay. Second question देखो, 8x minus 3
इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। अब यहाँ पर आपको पहले तो वो वाली टर्म्स को पकड़ना है जो टर्म्स में x आ रहा है। कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसमें x है? 8 and 2. 8x and 2x. 8x LHS में है 8x और RHS में है -2x। ओके, these are the two terms which are having x and there are some constant terms also। constant term उनको बोलते हैं जिसमें x नहीं होता है। तो LHS में constant term कौन सी है? What is the constant term in LHS जिसमें x नहीं होता है? कौन सी है? -3। 3 and 9. हाँ, और RHS में है 9। तो जिन टर्म्स में x है उनको आप एक साइड में कर लेंगे, या तो LHS में कर लीजिए जिसमें x आ रहा है, या RHS में कर लीजिए। तो हम LHS में कर लेते हैं। -2x को जंप लगा करके LHS में ले आते हैं तो ये क्या बनेगा? +2x बन जाएगा। ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म्स को RHS में कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, तो -3 को RHS में फेंक दिया, 9 + 3 हो गया। कांस्टेंट टर्म्स RHS में चली गई और x वाली टर्म्स LHS में आ गई। 8x + 2x हो गए 10x, 9 + 3 हो गए 12। x इक्वल टू अब क्या होना चाहिए? 10 है x के साथ, x को अकेला करना है, कैसे होगा अकेला बेचारा? 12/10 डिवाइड में आ जाएगा 10। So x equal to 6/5. Any doubt? No, sir. Clear? The concept is clear. Yes, sir. Okay. Maybe do the next one. Have you all written the question? Yes, sir. चलो ये वाला मैं करता हूँ, उसके Sir, बाद please वाला। scroll up for a minute. Yes, sure. अब इफ यू Okay, वांट sir. ना, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। इफ यू वांट यू कैन चेक वेदर जो हमने वैल्यू निकाली है दैट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? अगर वो वैल्यू जो हमने निकाली है x की, वो वैल्यू हम LHS में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आया। RHS में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आया। और दोनों को सिंपलीफाई करने के बाद अगर LHS RHS सेम आ गए, then we can say that the given value of x, the value which we have found of x is actually the solution of the equation। तब हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई यही है सॉल्यूशन। ठीक है। तनिष मित्तल from which class? Section C। Shriyansh Mittal. अच्छा, Shriyansh Mittal. C section। Yes, sir. Third part of the question, sorry, third question। I hope समझ में आ रहा है सबको easily। 7 - Yes, 5x equals to 5 - 7x। चलो चलो बेटा, LHS में x वाली टर्म्स बताओ कौन सी है? x LHS में कौन सी टर्म है x वाली? -5x. -5x। RHS में कौन सी है? -7x. इसको LHS में फेंक देंगे तो क्या बन जाएगी? +7x. कमाल हो गया। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं उनको RHS में फेंक देते हैं। RHS में पहले से ही 7. कौन सी टर्म थी? 5 पहले से ही था, -7. और ये जो 5. 7 है वो RHS में जाएगा तो -5 बन Minus. -7 बन जाएगा। ठीक है, +7 से -7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव था ना 7, यहाँ पे देखिए 7 पॉजिटिव Yes, sir. था, तो जब ये RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। नाउ -5x + 7x 2x। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ये सब कुछ। -5x + 7x बन जाते हैं 2x। 5 - 7 -2। अब क्या करने को बचा है? फॉर्मेलिटी रह गई है। x equals to -2/2, therefore x equals to -1। डिफिकल्ट है बेटा, बहुत डिफिकल्ट है ये। No, sir. वेरी इजी। डू द Sir. फोर्थ पार्ट एंड टेल मी द आंसर एवरीवन। सारे बच्चे फोर्थ पार्ट का आंसर बताएंगे। एट व्हाट टाइम दिस पीरियड गेट्स ओवर? ओके, इट गेट्स ओवर एट 1। ओके, डू द फोर्थ पार्ट ऑल ऑफ यू। Give your answer in the chat box. I am enabling it. Chat box enable कर दिया मैंने। Give your answer in the chat box all of you. Fourth part.
I want an answer from everyone. Only 2 of you have given the answer. Waiting for your answer, all of you. Okay, so I can say that Aviral, Rishabh Jain, and Shriyansh are virtually present in the class. They are not attending the class. Can I say that? Because they have not given the answer. ऐसा कह सकते हैं बेटा हम? 2 बच्चे चले ही गए इसी बात पे, छोड़ के निकल लिए। एक तो श्रेयांश मित्तल निकल लिए चुपचाप, बोले डांट पड़ने वाली है। और कौन निकल गया? चलो बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4, 3 plus 2x equals to 1 minus x. तो 2x, ये माइनस एक्स LHS में आ गया, प्लस एक्स हो Plus गया, x. और 3 को RHS में पटक देंगे, 1 minus 3 हो जाएगा। 2x plus x हो गए 3x, 1 minus 3 हो गए -2, x equals to -2, 3 चला जाएगा डिवाइड में, -2/3 आंसर। इजी, हार्डली 10 सेकेंड्स लगने चाहिए आंसर निकालने में। सात्विक ने आंसर बताया है, चलो कोई बात नहीं। इफ योर आंसर इज रॉन्ग, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड आंसर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अविरल इज बैक। अविरल बेटा, आपने आंसर क्यों सेंड नहीं किया? Sir, I didn't know that. व्हाट? आपको समझ में नहीं आया था क्या हुआ था? No, sir, answer. आंसर बेटा आपका गलत भी है, डो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। डूइंग द क्वेश्चन, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इज मोर इम्पोर्टेंट। रिजल्ट जो है वो गलत है या सही है वो तो बात की बात है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ट्राई तो करना चाहिए कम से कम। 3 plus 2x equal to 1 minus x, ये करा है देखो। ओके, बस माइनस एक्स को LHS में ले गए, प्लस एक्स बन गया, 3 को RHS में ले गए तो -3 बन गया, 3x equal to -2 मिल गया, x equal to -2/3 मिल गया। इजी।
चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ वाला करते हैं. देयर इज यूज ऑफ ब्रैकेट्स इन द क्वेश्चन. फिफ्थ वन, 2 into x minus 2 plus 3 into 4x minus 1 equals to 0. यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था 2 will be multiplied with both the terms. 2x minus 4 हो गया. ब्रैकेट को ओपन करना है सबसे पहले. 3 into 4x 12x and 3 into minus 3 minus 3. 3 into minus 1 is minus 3. तो 2x प्लस लाइट टर्म्स को ऐड करना है. मैथ्स में जो भी चीज एक बार पढ़ते हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं. 2x प्लस 12x आर लाइट टर्म्स. 14x इनको ऐड कर सकते हैं. 2x और 4 को माइनस मत कर देना, ये अनलाइक है. -4 एंड -3 आर अगेन लाइट टर्म्स. -4 -3 कितना हो गया? -7. अब -7 को RHS में पटक दो, कांस्टेंट है. 0 + 7 14x = 7. x = 7/14 यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आंसर 1/2. डाउट और नॉट? नो सर. क्लियर है? इजी है? यस सर. नो डाउन. 6th वाला ट्राई करिए आप लोग अपने आप जल्दी से ओके. और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए. ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई. यस बेटा, गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू. क्लास 4th के बच्चे, अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है. क्लास 4 स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन आफ्टर 2 minutes. क्लास 4 स्टूडेंट्स ज्वाइन आफ्टर 2 minutes. क्लास 4 स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन आफ्टर 2 minutes. अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है. क्लास 7 स्टूडेंट्स गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स. मैं वेट कर रहा हूँ.